Hello students, in this video we will continue further with dimensional analysis. Okay, so in the previous lecture we had seen that what is the application of units and dimensions. हम लोगों ने units and dimensions का use देखा था. One of the uses was कि अगर जो आपको given variables के अंदर relationship, quantitative relationship find out करनी हो तो dimensional analysis को use करके हम लोग वो कर सकते हैं. Now there are few more applications that we are going to look at in this lecture. Okay, so now the second application is to find, so कुछ rules है, हम लोग उन rules को अब use करेंगे. So rule is, okay, any physical quantity inside a mathematical function inside a mathematical function should be unitless. Any physical quantity inside a mathematical function, it should be unitless or dimensionless. उसके कोई dimensions या कोई units नहीं होने चाहिए. Okay, now let me do an example to explain it to you. Let's say आपके पास एक function दिया हुआ है tan of a by f. Okay, so tan of this a by f, where tan is a mathematical function, correct? ये आपका मैथमेटिकल फंक्शन है जहां पे f इज अ फोर्स एंड आपको a के डायमेंशंस फाइंड आउट करने. यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ a. ना ये रूल क्या कहता है? एनी फिजिकल क्वांटिटी इनसाइड अ मैथमेटिकल फंक्शन शुड बी यूनिटलेस. तो ये आपका मैथमेटिकल फंक्शन है. फिजिकल क्वांटिटी जो इस मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर है वो ये है, दिस इज a बाय f. दिस इज योर फिजिकल क्वांटिटी. सो a बाय f शुड बी यूनिटलेस, ओके, और डायमेंशनलेस. Now when I say a by f is unitless or dimensionless, इसका meaning therefore I can write a by f is equal to 1. So therefore a is equal to f. So I can write dimensions of a is equal to dimensions of f. Now whenever anything is unitless or dimensionless, आप उसके जगह पे 1 लिखते हो. So हमें पता है ना a by f unitless है, तो a by f should be equal to 1. So a is equal to f. So dimensions of a will be equal to dimensions of f. ठीक है. Now a by f equal to 1 is not exactly correct. I'll say dimensions of a by f should be equal to 1. Therefore dimensions of a will be equal to dimensions of f. So dimensions of a will be equal to, what is the dimension of force? ये हम लोगों ने देखा हुआ है, m raised to 1, l raised to 1, t raised to -2. So this would be your answer. ठीक है. और एक एग्जाम्पल करता है ताकि ये कंसेप्ट और आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है. सो लेट मी डू दिस एग्जाम्पल. लेट्स से इफ इट इज गिवन टू यू e इज e रेज टू माइनस a अपॉन एनर्जी इनटू t. t is time, so where e is energy, t is time, आपको a के डायमेंशंस फाइंड आउट करना है. ओके. नाउ e इज बेसिकली योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो ये मैथमेटिकल फंक्शन हुआ. नाउ किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली यूनिटलेस. तो इस मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी हुई. सो दिस शुड बी यूनिटलेस. सो देयरफॉर लेट मी राइट इट एज dimensions of a upon e into t should be equal to 1. करेक्ट. जैसे हमने यहाँ पे लिखा था वैसे हम सेम चीज यहाँ पे लिखेंगे. Therefore dimensions of a
is equal to dimensions of E into dimensions of T. Now therefore dimensions of A क्या हो जाएंगे? Dimensions of E, एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं m रेज टू 1, l रेज टू 2, t रेज टू -2 into time, m raised to 0, l raised to 0, t raised to 1. So you'll get dimensions of A is equal to m raised to 1, l raised to 2, t raised to -1. This would be your answer. ठीक है, आपको आया समझ में? सो जो भी फंक्शन जो भी क्वांटिटी मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर होती है, दैट क्वांटिटी हैज टू बी यूनिटलेस, वो यूनिटलेस होगी. ओके, वी विल डू वन मोर एग्जाम्पल ताकि और क्लियर हो जाए, कहीं पे कोई डाउट ना रहे. ओके, ना आपको मान लो ऐसे कुछ दिया हुआ है, log of x into density divided by let's say energy into area. Okay, so E is energy, A is area, this is density. आपको x के dimensions find out करना है. Now log is again a mathematical quantity, so therefore mathematical function, this is a mathematical function. mathematical function के अंदर जो physical quantity है वो ये है. So I can write therefore x into rho upon E into A, this should be dimensionless. तो इसकी इक्वल टू 1 लिख देंगे हम इसको. सो दिस इज x इज इक्वल टू E A अपॉन रो. ठीक है, सो देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू E, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी m रेज टू 1, l रेज टू 2, t रेज टू -2. एरिया के डायमेंशंस होता है m रेज टू 0, l रेज टू 2, t रेज टू 0. एंड डेंसिटी के डायमेंशंस होता है m रेज टू 1, l रेज टू -3, t रेज टू 0. सो x के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? 1 और 1 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m रेज टू 0, l रेज टू 2 + 2 4 एंड -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा. सो l रेज टू 7 एंड t रेज टू -2. So I hope you have understood this rule. The rule says that any physical quantity inside a mathematical function has to be unitless. It will be unitless. उसके कोई units या कोई dimensions नहीं होंगे. Okay. Now next rule. Okay. अब इस रूल की बात करें. अब लेट्स सी व्हाट डज दिस रूल टेल अस. ये रूल हमें क्या कहता है? ओके, नाउ इफ आई आस्क यू 2 kg प्लस 2 kg, व्हाट वुड यू गेट? आप आंसर दोगे सर 4 kg. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सिमिलरली 2 liters of milk plus 2 liters of milk, you will get 4 liters of milk. That is absolutely correct. Okay, now if I ask you 2 kgs of tomatoes plus 2 liters of milk, क्या मिलेगा आपको? आप 4 kg लीटर नहीं कर सकते ना, ये तो गलत हो जाएगा. ऐसा कुछ यूनिट होता ही नहीं है. सो इन दिस केस यू कैन नॉट ऐड 2 kg plus 2 liters. यू कैन नॉट डू दैट. इसको आप ऐड कर ही नहीं सकते. सिमिलरली इफ आई टेल यू 3 seconds plus 4 amperes कितना होता है, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता ना. टाइम को करंट के साथ कैसे ऐड कर सकते हो? ऐड करना मतलब क्या होता है कि कोई एक क्वांटिटी है, उसमें सेम टाइप की क्वांटिटी और ऐड करते जाना. तो व्हेन यू ऐड समथिंग, यू ऐड सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी इन इट, राइट? सो यू कैन नॉट कंपेयर टाइम एंड करंट. यू कैन नॉट कंपेयर मास एंड वॉल्यूम. You can compare volume with volume, you can compare mass with mass. So which means the rule is this. Acha, we can add or subtract only those physical quantities which have same unit. Same
यूनिट्स और डायमेंशंस। ठीक है, सो जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम है, आप उन्हीं को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। यह आया आपको समझ में? अच्छा, सो आप 2 kg प्लस 2 लीटर नहीं कर सकते, आप 2 kg प्लस 2 kg कर सकते हो, आप 2 लीटर प्लस 2 लीटर कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली इफ यू सी ऑन एडिशन, दिस इज द रिजल्टेंट क्वांटिटी दैट यू आर गेटिंग, ये आपकी रिजल्टेंट क्वांटिटी है ना। इफ यू कंपेयर द रिजल्टेंट क्वांटिटी, तो यहां पे इसके जो यूनिट्स है और इसके जो यूनिट्स है ये तो सेम होने चाहिए, तभी आप इनको ऐड कर पाओगे। बट ऐड करने के बाद जो आपको रिजल्टेंट क्वांटिटी मिल रही है उसके भी यूनिट सेम ही है। सो दिस इज केजी, दिस इज केजी, सो दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो केजीज। दिस इज लीटर, so that is why this is also liters. So I can also write one more rule in this. Okay, after addition or subtraction, okay, the resultant quantity obtained will have same units or dimensions. ये आया समझ में? तो ऐड करने के बाद आपको या सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है, इट विल हैव सेम यूनिट्स और सेम डायमेंशंस एज योर दीज टू क्वांटिटीज। क्या आया आपको समझ में? सो एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये चीज आपको ना बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी। Let's say it is given to you that y is equal to a into f divided by v plus energy upon pressure. So what it tells you is y is equal to, y is some physical quantity, a into f by v plus e by p, जहां पे f is force, v is velocity, e is energy and p is pressure. ठीक है, नाउ आई नो दैट आप इसको और इसको तभी ऐड कर पाओगे जब इसके और इसके डायमेंशन सेम होंगे। So dimensions of this should be equal to dimensions of this. So dimensions of A into F upon V, this is equal to dimensions of E upon P. And इन दोनों को ऐड करने पे this is the resultant quantity that you are getting. ये आपकी resultant quantity है। So इनको ऐड करने पे ये जो resultant quantity होती है, even this should have same units and dimensions. So this should also be equal to 1. क्या आया आपको समझ में? ओके, सो देयरफॉर अब इसको सॉल्व करता है। अब आपको a एंड y ये अननोन्स है, आपको डायमेंशन ऑफ a चाहिए एंड आपको डायमेंशंस ऑफ y चाहिए। ठीक है, तो पहले एक काम करता है, इन दोनों को यूज करता है एंड वी विल फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ a. सो लेट मी यूज देम। सो आई राइट a f by v is equal to E by P. ओके, सो A जो है E V P F। ठीक है, बस हमें A निकालना था ना, हमें A के डायमेंशंस निकालने थे, तो मैं V को ये साइड पे लेके गया और F को आई हैव गॉट इट ऑन दिस साइड। सो डायमेंशंस ऑफ A will now be equal to, what are the dimensions of energy? M raised to 1, L raised to 2, T raised to minus 2. Dimensions of velocity, M raised to 0, L raised to 1, T raised to minus 1. Dimensions of pressure, M raised to 1, L raised to minus 1, T raised to minus 2, into force, M raised to 1, L raised to 1, T raised to minus 2.
So now dimensions of A would be equal to, यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, डायमेंशंस ऑफ ए वुड बी इक्वल टू, अब क्या क्या चीजें कट हो जाएंगी देखो, -1 और +1 ये ऐसे ही कट हो जाएगा, -2 और -2 कट हो जाएगा, ओके, 1 और 1 कट हो जाएगा। सो अब क्या बचता है, ये m ऊपर चला जाएगा, सो यू विल गेट इट एज m⁻⁻1, फिर l 2 + 1 3, l⁻3 एंड t⁻⁻1, ये -2 ऊपर चला जाएगा, +2 हो जाएगा, -1 + 2 इज +1। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर जो आपको ये इस तरह से नहीं कंफर्टेबल हो तो आप इसको ढंग से सॉल्व कर सकते हो, 1 + 0 -1 -1, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, बट यू एंश्योर दैट यू शुड गेट दिस एज योर आंसर। ओके, सिमिलरली अब हमें y के डायमेंशंस चाहिए, तो अब y के डायमेंशंस मिलने के लिए हम लोग इन दोनों को इक्वेट करते हैं, दिस एंड दिस। सो आई कैन राइट नाउ E/P, this is equal to dimensions of y. So therefore dimensions of y, energy is m⁻1, l⁻2, t⁻², pressure is m⁻1, l⁻−1, t⁻²। ये वैसे ही कट हो जाएगा, ये वैसे ही कट हो जाएगा, so 2 + 1 3, so this will be m⁻0, l⁻3, t⁻0। You can see that ये वॉल्यूम के डायमेंशंस है ना, L3 इट इज बेसिकली द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, हमने क्या किया, ऐसे और एग्जांपल्स करते ताकि ये और आपको समझ में आ जाए ये कंसेप्ट। ओके, नाउ एन इक्वेशन इज गिवन टू यू, A × T, सी यहाँ पे A, B एंड C आर अननोन्स। Okay, T is time period, this is wavelength, G is acceleration due to gravity, rho is density and m is mass, ठीक है ना। आपको ये इक्वेशन ना, प्लस के जगह पे माइनस भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ऐसा है कि इक्वेशन दिया हुआ है और आपको A, B एंड C के डायमेंशंस जो है वो फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले तो हम लोग वो रूल लगाएंगे, आप उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो जिनके डायमेंशन सेम होता है। सो डायमेंशंस ऑफ λb² / g² will be equal to dimensions of c/ρ², c into ρ², which is equal to dimensions of mass। अच्छा, this should also be equal to जो resultant quantity आपको मिलती है उसके भी डायमेंशन सेम होने चाहिए। so this is equal to A into T, ठीक है, फाइन। नाउ आपको इसमें अननोन है, इसमें अननोन है एंड इसमें अननोन है, बट ये तो नोन है ना, दिस इज मास। तो मास के डायमेंशन, अब आपको A, B एंड C फाइंड आउट करना है, तो आपको पहले A फाइंड आउट करने के लिए लेट्स यूज दिस एंड दिस। सो आई नो डायमेंशंस ऑफ M शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ A into T। सो डायमेंशंस ऑफ A will be equal to dimensions of M divided by dimensions of time period. M is m⁻1, l⁻0, t⁻0. This is time period. So m⁻0, l⁻0, t⁻1. So this will now be equal to m⁻1, l⁻0, t⁻1-1. So these would be the dimensions of A. ये आपके A के dimensions हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए डायमेंशंस ऑफ B। आपको B के डायमेंशंस चाहिए। B के डायमेंशंस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो वी विल इक्वेट दिस विद दिस। सो दिस इज इक्वल टू λb²/g²। ओके, सो नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप?
सो देयरफॉर आपको बी स्क्वायर के डायमेंशंस, बी अननोन है ना, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. नाउ मास के डायमेंशंस होता है m रेज टू 1, l रेज टू 0, t रेज टू 0. ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस होता है m रेज टू 0, l रेज टू 1, t रेज टू -2. ये 2 है तो आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ के डायमेंशंस, लेंथ है तो m रेज टू 0, रेज टू 1, t रेज टू 0. सो बी स्क्वायर के जो आपके डायमेंशंस होंगे वो ये होंगे. आप इसको और सॉल्व करो. सो आप इसको ओपन करोगे तो व्हाट यू वुड गेट इज m रेज टू 1, l रेज टू 0, t रेज टू 0 इंटू 0 इंटू 2, m रेज टू 0, l रेज टू 2, t रेज टू -4 डिवाइडेड बाय m रेज टू 0, l रेज टू 1, t रेज टू 0. Now this will become equal to 1 plus 0 minus 0. So m raised to 1, l raised to 0 plus 2, 2 minus 1, 1, l raised to 1, 0 minus 4, 0. So t raised to -4. बट ये तो b स्क्वायर के डायमेंशंस हो गए. आपको b के डायमेंशंस चाहिए तो आप स्क्वायर रूट लोगे इसका. So therefore dimensions of b are m raised to 1, l raised to 1, t raised to -4. स्क्वायर रूट मतलब आप raised to 1/2 करोगे. So dimensions of b would be equal to m raised to 1/2, l raised to 1/2, t raised to -2. ठीक है. सो बेसिकली ये स्टेप ही बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू राइट द स्टेप करेक्टली. ये अब थर्ड स्टेप, m is equal to c into rho square. सो हमें ये पता है कि m is equal to c into rho square. So therefore आपको c चाहिए. So c is equal to m upon rho square. So this is m raised to 1, l raised to 0, t raised to 0. Density is m raised to 1, l raised to -3, t raised to 0. ये स्क्वायर है तो आप स्क्वायर करोगे. And when you solve this, you will get m raised to 1, l raised to 0, t raised to 0, m raised to 2, l raised to -6, t raised to 0. So this will become m raised to -1, l raised to 6, t raised to 0. ठीक है. सो हमने क्या किया है, हमने यही रूल्स अप्लाई किए यहाँ पे कि आप जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे उनके डायमेंशंस, उनके यूनिट सेम होने चाहिए. एंड उसके बाद जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आपको मिलती है उस रिजल्टेंट क्वांटिटी के भी यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम होंगे. सो हम लोगों ने दो रूल्स देखे हुए. पहला रूल ये था कि any physical quantity inside a mathematical function should be unitless. Okay. And the second rule that we had seen was that you can only add or subtract those physical quantities which have got same units or dimensions. ठीक है. अब हम लोग एक क्वेश्चन वैसा करते हैं कि जहां पे ये रूल एंड ये रूल, इन दोनों रूल्स को हम लोग यूज करेंगे. अब क्वेश्चन ना कुछ इस तरह का है. b log AW by m is equal to AT square by L plus A square B square by C square. यहां पे A, B and C are unknowns. ठीक है. And W is work done, M is mass, T is time, L is length. Okay. And आपको A, B and C के डायमेंशंस फाइंड आउट करना है. सी यहाँ पे प्लस साइन है तो आप वो सेकेंड रूल भी आपको यूज करना होगा. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है तो मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर जो टर्म होती है दैट हैज टू बी यूनिटलेस. सो एक काम करता है, पहले तो ये मैथमेटिकल फंक्शन है. सी इसमें यह पता है कि ये जो टर्म है दिस टर्म हैज टू बी यूनिटलेस. अब इसमें W के और M के डायमेंशंस आपको पता है तो आप A के डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हो.
तो सबसे पहले a w by m, this should be dimensionless, so this should be equal to 1. So dimensions of a is equal to dimensions of w divided by dimensions of m. Now work done के dimensions क्या होते हैं? What are the dimensions of work done? Okay, so this is m raised to 1, l raised to 2, t raised to minus 2 divided by mass m, m raised to 1, l raised to 0, t raised to 0. ये आया ना समझ में? So हमने क्या किया कि ये जो टर्म है which is inside a mathematical function, this has to be unitless and a के dimensions. अच्छा सॉरी, ये मैंने गलत लिखा है. A should be equal to m by w. Sorry, m by work done. So dimensions of mass are m raised to 1, l raised to 0, t raised to 0. Work done के dimensions m raised to 1, l raised to 2, t raised to minus 2. 1 और 1 कट हो जाएगा, so your dimensions of A will be m raised to 0, 0 minus 2, l raised to minus 2, 0 plus 2, t raised to 2. So these are the dimensions of A. Okay, ये A के आपके dimensions हो गए. Okay, अब यही A यहाँ पे कैरी होगा, तो आपको इस पूरे टर्म्स के डायमेंशंस पता होंगे. सी, जो भी मैथमेटिकल क्वांटिटी होती है, ये पूरी मैथमेटिकल क्वांटिटी ही यूनिटलेस होती है, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, ये यूनिटलेस है तो मैथमेटिकल क्वांटिटी भी अपने आप में यूनिटलेस होगी. सो योर मैथमेटिकल क्वांटिटी इज यूनिटलेस. दिस इज यूनिटलेस. ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर ऑल मैथमेटिकल क्वांटिटीज देमसेल्व्स आर यूनिटलेस. ओके, अब हम लोग ये करते हैं. अब हमें ये पता है कि दिस plus this is equal to this, so dimensions of this, dimensions of this and dimensions of this should be equal. So let me write that over here. So I can write dimensions of A t square by L should be equal to dimensions of A square B square by C square. This is equal to dimensions, ये आपकी resultant term है, dimensions of B log A W by M. ओके, नाउ यहाँ पे आपको B के डायमेंशंस नहीं पता, तो आप C के नहीं निकाल सकते. आपको बस A के डायमेंशंस पता है. तो आई कैन इक्वेट दिस विद दिस फर्स्ट. मैं जब इसको इसके साथ इक्वेट करूंगा तो मुझे यहां से B मिल सकता है. C, so therefore A t square by L is equal to dimensions of B into log A W by M. हम ना जो अब मल्टीप्लाइड टर्म से इनको हम लोग सेपरेट करते हैं. सो दिस विल बी A into t square divided by dimensions of L. This is equal to dimensions of B into dimensions of log of A W by M. Now A के dimensions हम लोगों ने निकाले हुए हैं. These are the dimensions of A. So A के dimensions हो जाएंगे m raised to 0, l raised to minus 2, t raised to 2. T square, when I say t square क्या होगा? m raised to 0, l raised to 0, t raised to 1 स्क्वायर है, तो अब आप स्क्वायर कर दोगे. ओके, डिनोमिनेटर में you have length, that is m raised to 0, l raised to 1, t raised to 0. This is equal to dimensions of B. ये तो आपका dimensionless है ना, mathematical quantity is always dimensionless, तो आप वहां पे 1 लिख दोगे. So this will now become equal to, आप इसको solve करोगे तो you will get dimensions of B as 0, m raised to 0, l raised to minus 2, 1, minus 3, t raised to 2, plus 2, 4. आप लोग एक बार चेक करना, you should get this. ठीक है, सो पहले तो आप 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू विल सॉल्व दिस. सो दीज आर योर डायमेंशंस ऑफ B. अब आपको A के भी डायमेंशंस मिल गए हैं. यू हैव ऑल्सो गॉट द डायमेंशंस ऑफ B. अब हमें जो है वो C के डायमेंशंस फाइंड आउट करना है. अब C के डायमेंशंस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो आई कैन यूज दिस ना.
इसके जो डायमेंशंस है should be equal to dimensions of this. So let me write down over here now. Dimensions of a square b square by c square. This is equal to dimensions of b log a w by m. आपको c स्क्वायर के डायमेंशंस चाहिए. c ये टर्म तो 1 है तो इसको छोड़ देता है. So dimensions of c square would be equal to a square into b square by b, क्योंकि ये b नीचे आ जाएगा ना. So 1b will get cancelled. So dimensions of c square will be equal to a square into b. ठीक है. अब c स्क्वायर के डायमेंशंस निकालते हैं हम लोग. So therefore dimensions of c square would be equal to a के डायमेंशंस हमें पता है. So m raised to 0, l raised to -2, t raised to 2 the whole square. And dimensions of b हमें पता है. m raised to 0, l raised to -3, t raised to 4. So you will get c square as, इसको सॉल्व करोगे तो this will be equal to m raised to 0, -2, -4, -3, -7, 2 2s are 4 plus 4 8. ये आपको c स्क्वायर के डायमेंशंस मिल जाएंगे. आपको c के डायमेंशंस चाहिए तो आप स्क्वायर रूट दे दो. So c is equal to m raised to 0, l raised to -7, t raised to 8 raised to 1 by 2. So your dimensions of c would be equal to m raised to 0 into 1 by 2 is 0, -7 by 2 and 8 by 2 is 4. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. हमने 2 रूल्स देखे हैं. इन 2 रूल्स को अप्लाई कैसे करना है वो हम लोगों ने देखा हुआ है. ओके हम लोगों ने कन्वर्जेंस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में प्रीवियस लेक्चर में वो देखा था. हाउ डू यू डू द कन्वर्जेंस. हमने वो भी देखा हुआ है कि डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके आप फॉर्मूलेज कैसे आप डिराइव कर सकते हो. ओके आप अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे डिराइव कर सकते हो. ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हुई है. So now we have covered lots and lots of things. Okay. दूसरा जो पार्ट बचता है that is error analysis. Now error analysis start करने से पहले it is very important that इस सेक्शन पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस अब सॉल्व करो. ठीक है. So I'll send you the questions as assignments. आपको उन क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना होगा. ठीक है. चलो बाय एवरीवन.